Hello friends, today I welcome you also, and today we are going to discuss and study the poem The Trees. This poem is composed by a feminist poet Adrienne Rich, and the trees is described here a type of symbol that is symbolic shape, and trees refer to the women also. But firstly, we will go through this poem, and at last, we will discuss how this is a symbol, how the symbolic is used in this poem as a tree. Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? So, to know about the answer of this question, we have to go through the poem. So, let us start the poem. The trees inside are moving out into the forest that was empty all this day, where no birds could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. The poet Adrenalis is describing that today, nowadays, it is a trend, it is like a fashion that people plant plant the trees, small trees in their houses in a ways. अक्सर देखा जा रहा है आजकल, जैसे एक ट्रेंड बन गया है, एक प्रचलन में है कि लोग कुछ पौधों को गमलों में, कुछ अपने घरों के आसपास घरों में उसे रखे हुए हैं. Then poet Adrenalis is describing about the trees, about the plants, those who are inside the houses. Inside the trees inside are moving out into the forest. वह जो घर की तरफ है, घर के अंदर है, घर में है, जो पौधे, वो पेड़, वो कहाँ मूव कर रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं, जंगलों की तरफ जाना चाह रहे हैं. The forest that was empty all these days. इन दिनों ये जंगल क्या हो गए, खाली हो गए. इन दिनों ये जंगल पेड़ से खाली हो गए. There is no trees. There are no trees in the forest. The forest has no trees now. There are tree less, and now the people has a fashion. People have a fashion, a type of that they are planting the trees inside their houses now. But these trees are moving from house towards forest, and now forests have no tree. That is that has treeless. So there is where is no birds could sit. Where there is no tree, then there no bird could sit, no insect hide. ना तो कोई चिड़िया वहाँ बैठ सकती है, ना तो कुछ कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा सकते हैं, because there is no tree. No sun bury its feet in shadow. The forest. अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों के पीछे जाकर सूरज डूब जाता है. And when there is no tree, then the sun is unable to bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights. आजकल ये जंगल पूरी तरह से खाली है, तो सूरज भी इन पेड़ों के पीछे जाकर छिप नहीं पा रहा है, डूब नहीं पा रहा है. Will be full of the trees by morning. लेकिन ये कल सुबह तक, अगले सुबह तक, आने वाले कल में ये क्या हो सकता है, पूरी तरह से भर सकता है अगर हम प्रयास करें तब. If our efforts for the trees, for the forest, that may be the useful to this moment, and that can be full of the trees, that forest can be full of the trees by the next morning when we plant, when we keep this. And how in the next stanza? So in the first stanza, the poet is describing that we have the trees inside our house, and these trees are now going to are trying and are going to out from the house to the forest. In the next stanza, all nights the roots works and disengage themselves from the cracks. All night the roots work.
जो पेड़ की जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं, जो हम अपने गमले में अपने घर में लगा रखे हैं, उस पौधों की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, पूरी रात काम करती हैं टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, उस दरारों से निकलने की, उसमें गमले में दरार कर दे रही हूँ, उस दीवारों में दरार कर दे रही हूँ, वहाँ से बाहर निकलने के लिए इन द बरांडा फ्लोर, जो बरामदा वाले फ्लोर पर जो कुछ पौधे रखे गए हैं, उस बेस के क्रैक से ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी रात प्रयास करती हैं। किसकी जड़ें? इन पेड़ों की जड़ें। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और पेड़ के जो पौधे हैं, पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं वो स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, वो ग्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो शीशे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिप द एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ सफलिंग अंडर द रूफ, और छत के नीचे ये जो बड़े शाखाएं निकल रही हैं, शाखाएं ऐसा लग रहा है उस ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाने के लिए मजबूर हैं, आतुर हैं, दे व्याकुल हैं। इट सीम्स दैट दे आर वेरी keen to get out from this glass, from this vase, as they they are uh, they are very eager to get out from these vases, as a new, like a newly discharged patient half dozed, जैसे किसी एक बीमार व्यक्ति को, नया नया बीमार व्यक्ति हो, अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया जा रहा हो, उसकी इच्छा होती है कितनी जल्दी वहाँ से भाग जाए, कितनी जल्दी वहाँ से निकल जाए, और हाफ डस्ट अभी जैसे आधे नींद में हो, और मूविंग टू द क्लिनिक डोर, और किस तरफ भाग रहा हो, क्लिनिक डोर की तरफ भाग रहा हो। ऐसे ही ये पौधे हैं, ये भी इस घर से बाहर निकल जाना चाहते हैं, जंगल की तरफ जाना चाहते हैं, उस कैद में, जो उस घर के अंदर जो कैद में है, जो घर के अंदर चार दीवारी में है, गमलों में है, उसे निकल कर स्वतंत्र बाहर चैन की सांस लेना चाहते हैं। बट पोएट इज डिस्क्राइबिंग हियर ordinary that I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. I am sitting here and I see the trees, those who are in the vase, and I am writing a letter in which I secretly mention the departure of the forest from the house. और मैं आई एम नॉट गोइंग टू मैंसन अबाउट दैट दिस ट्रीज आर गोइंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, मैं मैंसन नहीं कर रही हूँ, इनके बारे में मैं नहीं लिखने जा रही हूँ। मेरा लिखना नहीं है कि मैं लिखूँ इनके बारे में कि ये पेड़ पौधे अब घर से निकल कर जंगल की तरफ जा रहे हैं। एंड द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, ताजी रात है और पूरा चंद्रमा निकला हुआ है, चांदनी भरी हुई है, स्काई एकदम ओपन है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, कमरे में इन पत्तियों की और उस पर लगे फफूद लाइकन की जो सुगंध है वो इस कमरे से आकर आवाज़ की भांति इन तक पहुंच रही पोएट के पास, एड्रेनेरिज के पास। और वह कहती है कि मैं इनके बारे में अब मेंशन नहीं करने जा रही हूँ कि अब यहाँ से निकल कर ये कहाँ जंगलों की तरफ जा रही हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन अबाउट दिस थिंग, बट आई कैन फील द स्मेल ऑफ द लाइकन एंड द लीव्स ऑफ द दिस प्लांट्स दोज हु आर put in the veranda. So next and the last stanza. My head is full of the whisper which tomorrow will be silent. मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से एक बड़बड़ाहट है जो कल तक ये क्या होने जा रहा है, साइलेंट हो जाएगा। आज मैं बोल रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ, मेरे मन में कुछ है, हो सकता है कल मैं शांत हो जाऊँ, ना बोलूँ, लेकिन लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब मैं देख रही हूँ कि ग्लास धीरे धीरे टूट रहा है। ये पौधे आज़ाद होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, जंगल की तरफ जाना चाहते हैं, स्वतंत्र अपने जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए अब ये ग्लास को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ब्रेकिंग की आवाज़ आ रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और ये जैसे आगे की तरफ पेड़ बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, रात में पेड़ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, हवा भी जैसे इनसे मिलने के लिए दौड़ी चली आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और इनके लिए तो ये चंद्रमा जैसे टूटा हुआ एक शीशे की समान है, जो इट्स पीस फ्लैश नाउ इट्स अ क्रोन टू द टैलेस्ट ओक, और इनके ऊपर जो इनका तना है, उस तने पर, उनकी शाखाओं पर और उनके ऊपरी शिखा पर जब यह रोशनी पड़ रही है तो एक क्राउन की तरह से, एक ताज की तरह से लग रहा है, और लग रहा है कि ये पूरी तरह से आज़ाद होकर अब बाहर चले जाएंगे और ये अब एक कैद में नहीं रहेंगे। तो दिस इज़ द सिंबॉलिक पोएम अबाउट द ट्रीज, एंड आई टोल्ड दैट दिस इज आल्सो मेंशन अबाउट द फेमिनिस्ट। Edna Rich was born in the Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of
poetry and has been called a feminist and the radical poet. Feminist is a term in that the creation, the contribution, the anything that supports for the women, that supports to the upliftment of the women, that is the feminism. And those who help, those who write, those who contribute their effort for the upliftment of the women, they are the feminist. वह कोई भी रचना, कोई भी कार्य जो औरतों में सुधार के लिए, औरतों के को ऊपर उठने के लिए कार्य किया जा रहा हो, वह टर्म फेमिनिज्म कहलाया। और वह व्यक्ति जो इसके लिए कार्य कर रहे हों, वो फेमिनिस्ट पोएट हुए, या फेमिनिस्ट राइटर हुए, या फेमिनिस्ट वर्कर हुए। तो एड्रिना रिच भी फेमिनिस्ट राइटर ही हैं, और इन्होंने इस पोएम में पेड़ को एक सिंबल बनाया कि ये जो पेड़ हैं, ये जैसे गमलों में घरों के अंदर कैद है, वैसे ही नारियां हैं, स्त्री हैं, औरतें जो हैं वो पूरी तरह से कैद हैं। वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, वो बाहर जाना चाहती हैं, बट दे आर अनेबल टू गो। वाई? बिकॉज देयर इज द प्रायोरिटी ऑफ मेल इन आवर सोसाइटी, so they are deprived from the basic things. But it is not going to now. She is saying that the glass is now breaking. अब वो ग्लास टूट रहा है, पत्तियां हिल रही हैं, उसकी लताएं बाहर निकल रही हैं, आज नहीं तो कल ये जंगल की तरफ चले जाएंगे। What does it show? It shows that in the society earlier the women were deprived. There was a lackness of the basic things for the women. They were unable to contribute their effort in the society. But now what happened? But now the condition has totally changed of women. Now they are they are contributing their effort for the society, for the country, and for their family, and for themselves also. So as the trees are unable to go out, as they are in the inside the four wall, as they are put in the veranda, and they are unable to speak, they are unable to go anywhere, the same condition was also of the women. And she is writing for the upliftment of the women, improvement in the condition of a female, in the condition of women. So we see that here, as it is written at last stanza, that my head is full of whisper which tomorrow will be silent. आज तो मेरे मन में इन औरतों के लिए कुछ बड़बड़ाहट है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, भड़ास निकालना चाहती हूँ, शायद मैं कल चुप हो जाऊँ, मैं ना बोल पाऊँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ये ग्लास टूटने लगा है। अब वो जो बंधन था, औरतों को बांधे हुए था, बाहर नहीं निकलना है, सोसाइटी में अपना योगदान नहीं देना है, घर के अंदर ही रहना है, अब वो ग्लास टूटने लगा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और वो पेड़ जो हैं बाहर निकलने लगे हैं। पेड़ नहीं, अब वह सीमा रेखा से, अब वह बंधन से मुक्त हो रही हैं, और यह औरतें बाहर निकलने लगी हैं इनटू द नाइट्स। विंड्स रश टू द मीट देम, और पूरा संसार जैसे उनका स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए तैयार है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और इनके लिए ये मून जो है एक मिरर की तरह से है, जो उनके ऊपर एक ताज की तरह से पहना कर उनका स्वागत करेगा। सो इट इज़ द पोएम अबाउट द ट्रीज, एंड दैट इज़ द आल्सो बेस on the condition of the women of our society. Okay, I hope you will be able to understand the poem by Adriana Rich, The Tree. Okay, thank you.